Good morning everyone. Myself Soumya Grover, Assistant Professor, Mass Communication Department, Jagannath University, Jaipur. Today we will be talking about the process of communication. In the last chapter we have already studied in depth about what is communication and the history of communication. So today we will be talking about the whole process of communication. Communication is never a one-way process. ये एक two-way process है जिसमें अलग-अलग elements साथ में होते हैं. So when we talk about the elements of communication, हमारे पास 7 elements हैं communication के, जिनके behalf पे हम लोग communication करते हैं और इनके बिना communication complete नहीं हो सकता. The first element of communication is the communicator and is also known as the encoder and the sender. He is the one who is the first person in this communication process. He is the one जिसके पास कोई एक message होता है जो वो अपनी audience तक डिलीवर करना चाहता है. He is the one who takes the initiative to start any dialogue. जब भी वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अपना मैसेज देता है तो he और she is the one जो अपने मैसेज को कंसेप्चुअलाइज करते हैं, उसको दिमाग में सोचते हैं और रिटर्न या वर्बल फॉर्म में उस मैसेज को आगे कन्वे करते हैं. He has the ability to think, to organize the thoughts quickly and express himself effectively. ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं एक गुड कम्युनिकेटर के. अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानता होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर एंड द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द मैसेज. कम्युनिकेटर कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ टीचर. जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे दिमाग में एक मैसेज है कि मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आई एम द वन हु इज initiating this communication. So I can be a communicator. It can be a writer जो अपनी बुक के थ्रू या अपने आर्टिकल के थ्रू आप तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है. It can be a speaker. It can be a political leader जो अपनी स्पीच के थ्रू लोगों को मोटिवेट करता है. It can be a coach और anyone जो लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है. एक फॉर्मल वर्ल्ड में when we talk about the communicator, it can be a HR person, it can be a leader, it can be anyone जो मैसेज आगे अपनी ऑडियंस को देना चाहता है. He does not fumble, does not look forward, and all he says is accompanied by the appropriate gestures and delivered at an acceptable pace. Should be very good with his English command. He should have a good he should capture the words, he should not fumble, and he should look forward for the words so that he is able to communicate his message to the audience. Also, he is a person who never look down upon the people with whom he communicates. So he should be an ideal so that he can clearly convey the message. He should be mature enough and minimum respect due to the other person must be extended to him. He should regard and respect the other person because when we talk about the communication process, he will be the one who will be receiving the message from the feedback from the audience. So he should be respectful towards others as well. Talking about the second element is the encoding. Encoding is the formulation of message in communicator's mind. That is, the communicator not only translates his purpose, ideas or thoughts into a message but also decides on the medium to communicate his planned message. Encoding is the process जहाँ पर message को formulate किया जाता है. मैं आज अपने students को message देना चाहती हूँ कि आप लोगों का मैं एक class test लूँगी. Now अब इस message को मैंने दिमाग में सोचा कि और मुझे ये बच्चों को कन्वे करना है. सो दिस थिंकिंग प्रोसेस ऑफ माइंड इज नोन एज द एनकोडिंग. अब मैं इसमें सोचूंगी कि मैंने बच्चों को ये कैसे इन्फॉर्म करना है, वेदर आई विल टेक्स्ट इट टू देयर क्लास ग्रुप या फिर मैं उनको ये मैसेज वर्बली जाके बताऊंगी. सो दिस होल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ऑफ एनकोडिंग, ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग इज नोन एज एनकोडिंग. यहाँ पर जो रिसीवर होता है हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ता है कि जब हम ये मैसेज एनकोड कर रहे हैं तो क्या वो रिसीवर उसको एज इट इज ले पाएगा या नहीं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक नेताजी एक रैली करते हैं और गांव के कुछ लोगों को एजुकेशन के बारे में बताते हैं. वहां पर वो सोचते हैं कि मैं जो अपनी स्पीच हूँ पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दूंगा. बट ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने सोचा कि एनकोडिंग जो उनका थॉट है, जो उनका मैसेज है, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने वाले हैं. विच मीन्स द ऑडियंस देयर हैज टू बी लिटरेट. बट जैसे मैंने आपको बताया कि गांव के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शायद वो मैसेज को
उस तरीके से ना ले पाए। तो इनकोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। The third element of communication, the process of communication, comes the message. Again, a very important element. This is basically what a communicator actually produces for the transmission using spoken or written words or a photograph, painting, films, poster, etc. So basically मैं अपना मैसेज किस तरीके से देना चाहती हूँ। कोई फिल्म डायरेक्टर अपनी फिल्म में जो मैसेज है उसको डायरेक्ट करके लोगों के सामने लेकर आता है। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर उन्होंने अपने मैसेज को एक फिल्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। नाउ द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस द रिसीवर एंड गेट फेवरेबल रिस्पॉन्सेज सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजंस कैन बी टेकन। द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन इसीलिए डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, एंड दैट मैसेज शुड बी अप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड। मैंने मैसेज कर दिया 8 बजे मीटिंग है, राइट, हम सबने मैसेज पढ़ लिया, बट माय मैसेज इज इनकम्प्लीट। मैंने उसमें ये नहीं मेंशन किया इट इज AM और PM, मैंने बस लिखा 8 बजे मीटिंग है, मीटिंग एट 8। नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट मैसेज। मेरी जो ऑडियंस है उस मैसेज का कोई भी मीनिंग समझ सकती है, जिसकी वजह से मेरा जो मैसेज का मेन मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रहेगा। Next comes the channel. Channel is basically the vehicle through which the message is carried from the communicator to the receiver. Now मैं किस चैनल के थ्रू अपना वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It can be a written message. फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग कल पिकनिक पे जा रहे हैं, मुझे ये मैसेज हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेंड इट टू देयर क्लास ग्रुप और आई कैन गो एंड मेक एन अनाउंसमेंट, और मैं उन लोगों को एक मेल कर सकती हूँ, रिटन फॉर्म में उनको भेज सकती हूँ, डिजिटल फॉर्म में भेज सकती हूँ। तो अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हम लोग उस चैनल को चूज करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मास कम्युनिकेशन, उसमें चैनल कैन बी एनी मीडियम जिससे हम मासेस तक जुड़ सके। मासेस तक जुड़ सके मतलब हमारी ऑडियंस, हमारी जनता, हमारे लोगों तक जुड़ सके। तो उसके लिए हम मीडियम यूज कर सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, हम रेडियो यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, हम ये सब चूज कर सकते हैं ताकि लोग उन मीडियम के थ्रू हमारा मैसेज ग्रैस्प करें। Success and failure of communication depends on the selection of the right channel. For example, अगर हमने कोई एक कैंपेन बनाया है नेशनल इंटीग्रेशन पे, so what media would you choose to reach to the audience? ये बहुत मैटर करता है कि उन लोगों तक मैसेज जो हमें पहुंचाना है वो हम किस तरीके से पहुंचाएंगे। हम हर बार टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स को यूज कर सकते हैं, या हमें उसमें बजट कॉन्स्ट्रेन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है, हम कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, कॉस्ट कम देखना पड़ता है हम लोगों को, हमें एक्सपोज तो नहीं हो जाएगा हमारा मैसेज, ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो बेसिकली व्हाट इज आवर इंटेंशन और डिजायर हमारी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, दैट कम्स अंडर दी चैनल, कि हम उस चैनल में हमारे कम्युनिकेशन को, हमारा जो अटेम्प्ट रहेगा वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट factor, the next element is the receiver. Again, he is the person who is as important as the sender. He is the person who is basically the one who will be receiving the message. Sender ने जब मैसेज फ्रेम किया था वो इसी पर्सन के लिए किया था, इसी ऑडियंस के लिए किया था। At the end of the communication, the recipient of the message is the person who is known as the receiver. He is the decoder of the message. जब मैसेज एनकोड होके रिसीवर के पास आता है तो he is the one who receives that message and then frames a feedback. He should have the ability to listen, to read, to think. Otherwise, he will not be able to decode the message, right? तो अगर मैंने किसी illiterate person को written message दे दिया and he is my audience, he is my receiver, it will be very difficult for that person to take the main message from the communication. For effective communication, the receiver is the most important link in the communication process. Now, he is the one who links the whole communication process. अगर हमने कोई भी communication करना है, it has to be done for a person, for a audience, for the receiver. अगर receiver नहीं होगा हमारे पास, तो communication process पूरा fail हो जाएगा.
So the next element after the receiver is decoding. Decoding is as important as encoding of the message. जैसे कि हम लोगों ने अभी encoding में पढ़ा था, the sender has to encode the message as per the receiver. यहाँ पर जो हमारा receiver है उस message का interpretation grasp करता है, right? तो अगर उसके पास वो message written form में आया है तो he will read the message. अगर उसके पास वो message एक film के form में आया है तो उसको वो message देख के, वो फिल्म देख के उस मैसेज को ग्रास्प करना पड़ेगा. अगर उसके पास वो मैसेज वर्बल कम्युनिकेशन में आया है, वो मैसेज उसको सुनाया जा रहा है, तो ही विल बी द वन हु विल टेक केयर कि वो मैं मैसेज को डिकोड करूं, ढंग से सुनूं ताकि कोई भी चीज इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए. तो रिसीवर जो होता है ही लुक्स फॉर द मीनिंग इन द मैसेज कि एक्चुअली इस मैसेज का मतलब क्या है. मीटिंग 8 बजे है तो मुझे if I am the receiver, I have to look forward to it कि मैसेज कंप्लीट है. मैसेज में लिखा हुआ है 8 बजे मीटिंग है, लेकिन वो कब होगी, AM होगी या PM होगी. So I can obviously ask for the feedback. I can give them the feedback that message is incomplete. तो decoding ये प्रोसेस होता है. Coming to the last element of communication is the feedback. It is one of the most important एलिमेंट बिकॉज बिना फीडबैक के हमें कभी नहीं पता लगता, कम्युनिकेटर को, सेंडर को कभी नहीं पता लगता कि मैसेज उसके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा. रिसीवर का काम होता है वंस ही गेट्स द मैसेज टू गिव द फीडबैक, राइट. जरूरी नहीं है कि हर कम्युनिकेशन में, हर सिचुएशन में आपके पास कोई यस या नो आंसर हो फीडबैक के लिए. कई बार हो सकता है इट इज एन ऑर्डर, तो भी आपको रिप्लाई करना पड़ता है. जैसे हम लोग जब क्लास में बैठे होते हैं, अभी मैं एज अ सेंडर ये सारा मैसेज आपको दे रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग अ फीडबैक. मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा. लेकिन इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, बेटा समझ में आया, तो व्हाट ऑल यू विल डू, यू विल नॉड योर हेड्स. तो उससे मुझे ये पता लगेगा, मुझे ये फीडबैक मिलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है. सो दिस फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीवर टू द कम्युनिकेटर मैसेज. जब ये फीडबैक अगेन सेंडर के पास वापस पहुंचता है तो ही उसको रियलाइज होता है कि मेरा मैसेज जो है वो रिसीवर के पास पहुंच गया एंड ही हैज ग्रास्प्ड द इंफॉर्मेशन. कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे पास एक मेल आता है, वी जस्ट गो थ्रू इट एंड वी लीव इट. हमारे सेंडर को कभी नहीं पता लगता कि वो मेल उसके पास पहुंची है या नहीं पहुंची. तो इसीलिए हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहा जाता है ऑलवेज रिप्लाई टू द मैसेजेस. जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस को कभी अनसीन नहीं छोड़ते, वैसे ही हमें मेल्स का भी हमेशा रिप्लाई करना चाहिए. थैंक यू.